Good afternoon, everyone. I, Mudita Raj, Assistant Professor, Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the 16th episode of the Vibrant India series. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As a part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personalities for this series are from all walks of life and from all parts of the country. And today, our special guest is Mr. Arvind Gaur, a theatre artist known for innovative, socially, and politically relevant plays. Sir is the creative director at Asmita Theatre Group. I welcome you, sir. I would also like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education, DME, is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BBA LLB with BCI approval and BA JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival, SIFI, International Conference, ICANN, and Ritika, Convention of Media Students. And newly added in the list is WIZ, Vibrant India Series. It is our privilege to introduce you to the guest for the day, Mr. Arvind Gaur, the personality of the 16th episode of the VIS. I request Suchi Pathak, student, DME Media School, to introduce our guest of the day. Over to you, Suchi. Thank you so much, ma'am. Mr. Arvind Gaur is a theatre artist known for innovative, socially and politically relevant plays. Sir is the creative director at Asmita Theatre Group. He has directed more than 60 plays in last 15 years. His work deals with internet censorship, communalism, caste issues, feudalism, domestic violence, crimes of state, politics of power, violence, injustice, social discrimination, marginalization, and racism. Sir was the guest faculty of Delhi University for Theatre in Education program for 3 years. He is the recipient of Research Fellowship awarded by Ministry of Human Resource Development and was also given the Special Honor Award by Delhi International Film Festival 2015. Sir has acted in various films including Ranjana directed by Anand L. Rai. Mr. Gaur has collaborated with various theatre artists and groups, especially in exploring a new language for solo performances. Thank you so much, sir, for joining us. अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला विभागा अध्यक्ष डीएमई मीडिया स्कूल से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें. मैम. Thank you, Mudita. Good afternoon, everyone. Welcome everybody in this 16th episode of Vibrant India series. We launched this digital program on August 9 on the anniversary of Fit India movement. Basically, Vibrant India series उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश को अपना सर्वस्व दिया. हमारा देश अगले वर्ष आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है. इसी उपलक्ष्य में हम यह उत्सव मना रहे हैं. इस उत्सव में सहयोग देने और हम सब से रूबरू होने में जिन महत्वपूर्ण लोगों का साथ हमें मिला, उन सभी का मैं दिल से आभारी हूँ. इस देश को मजबूत बनाने में और एक दिशा प्रदान करने में हम सभी का कहीं न कहीं किसी तरह का योगदान होता है और हम सभी भली भांति उसका निर्वहन करने की भूमिका अदा करते हैं. चाहे वो सैनिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, शिक्षक, पायलट, वकील, समाज सेवी, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, फिल्म मेकर, पत्रकार या नाट्यकर्मी. जी हाँ,
आज इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने प्रख्यात रंगकर्मी श्री अरविंद गौर जी। सर, मैं आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमई मीडिया स्कूल से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे आज के कार्यक्रम को आगे ले जाएं। सर। Thank you, Mudita. This is a matter of great pleasure that we have today with us Mr. Arvind Gaur, who in fact needs no introduction. He is such a big name in the field of theatre, not only in the entire country, but even outside. And not only that he is known for his work, but the important thing is the kind of penetration that he has made into everybody's life with his work, and the kind of organizational capability that he has, and the number of actors that he has produced through his theater, who are prevalent, who are working in fact at every level, at every stage, be it the street theater, be it the proscenium in Delhi, in India, other parts of the country, and also number of actors have made a place for themselves in the film industry or in the TV industry. So the kind of contribution that Mr. Arvind Gaur has made, it's difficult to put it in words, and obviously since he does so much work for theater, he remained too busy, and despite that he was able to spare some time for us. And talking about this whole series, Vibrant India series, as it has already been told, that we conceived this series completely with a different perspective, and the whole objective was that when we are completing this 75 years of independence next year. So what is desired at this moment, that we have to sit and we have to look at the kind of scenario that is there in the country and the people who are making an immense contribution in different walks of life. Because in our day-to-day life, whatever we do, whichever profession we are, we always look at certain people who we treat as our ideals, who we treat as our role models, and we try to take something, to pick up something from their work, from their life, and then we try to translate all that into our lives. So, जैसा कि हम बहुत ही सामान्य तौर पे कहते हैं कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो ऐसे में वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो समाज के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, और वो किसी भी रूप में करते हैं, वो हमारे लिए स्तुत्य हैं, वो हमारे लिए स्वागत योग्य हैं। और इस कार्यक्रम में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के लोगों को अपने छात्रों के बीच लेकर आए, जिनको देखकर छात्रों में कुछ प्रेरणा हो। और खासतौर से हम डीएमई की बात करें तो डीएमई इज नोन फॉर देयर extra activities, though in the new education policy we do not put it as extra thing. It is somewhere part of the main curriculum, wherein through different kind of activities we try to groom our students. So that is how DME is unlike any other educational institution. We have societies, all kind of societies, and particularly if I can refer to the theatre society. तो जो हमारी theatre society है, वो हमारी जितनी भी DME की societies हैं, उनमें काफी strong society है जिसका नाम ताबीर है, और हमारे जो students हैं वो नियमित रूप से कुछ ना कुछ थिएटर में करते रहते हैं। ये बात सच है कि पिछले 1.5 साल में जब से कोरोना आया तो उसमें एक थोड़ा सा सेटबैक लगा, बट देन उससे पहले और उसके बीच में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ताबीर की तरफ से होती रही। और अब जैसा हम सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब चीजें थोड़ा सुधर जाएंगी और बहुत जल्दी ही सारा कुछ हमारा फिजिकल मोड में होगा, तो फिर से ताबीर उसी तरह से होगी। और इसमें न सिर्फ मीडिया, हमारे यहाँ जो भी छात्र हैं वो भले ही लॉ में पढ़ाई कर रहे हो, मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके स्ट्रीट थिएटर भी करते हैं,
और स्टेज थिएटर भी करते हैं। और अरविंद जी भी हमारे इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं और वो इस तरह का व्यक्तित्व है, इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो सर्व सुलभ हैं, जिसको भी थिएटर में उनकी जरूरत पड़ती है वो उसके लिए उपलब्ध है। तो हमें लगता है कि आज के इस एपिसोड में काफी सार्थक चर्चा होगी और हम उनकी जीवन के और उनके काम के ऐसे अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उनके बारे में सबको सब पता है, लेकिन हो सकता है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा हो जो और प्रेरणादायी हो और जो हमारे लिए और हमारे छात्रों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ऐसी कुछ चीजें हमें आज के कार्यक्रम में उनसे सुनने को मिलेंगी और उनसे जानने को मिलेंगी। और जैसा कि हमारा इस वाइब्रेंट इंडिया सीरीज का जो पूरा फॉर्मेट है, जो पूरा प्रारूप है, इसमें हम इसके पहले सेगमेंट में, पहले भाग में हम अपने आमंत्रित अतिथि से, उस व्यक्तित्व से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपने जीवन के बारे में और अपने कार्यों के बारे में ऐसा कुछ बताए जो हम सबके लिए प्रेरणादायी हो, जिसके बाद हम इस पूरे कार्यक्रम को इंटरैक्टिव मोड में ले जाएंगे और हम कुछ ऐसे सवाल होंगे, जो सवाल क्या, मुख्य रूप से हमारी जिज्ञासाएं होंगी, जिनका जवाब हम अरविंद गौर जी से जानने की कोशिश करेंगे। सो इस पहले सेगमेंट में मैं अरविंद गौर जी से ये अनुरोध करता हूं कि वो हमें संबोधित करें और अपने जीवन और कार्यों के बारे में हमें कुछ बताएं। अरविंद जी। नमस्कार। डीएमई का आभार कि मुझे बुलाया, और सुष्मिता मैडम, मुदिता जी, अमरीश सक्सेना सर और सुची पाठक और तमाम जो मौजूद यहाँ पर हैं, जो सुन रहे हैं, उस सबका स्वागत है कि आपने मुझे इसका वाइब्रेंट इंडिया कार्यक्रम बुलाया। ये अपने में मैंने कुछ सीरीज देखी आपकी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रेरणादायक है। अलग अलग व्यक्तित्व जो आपने इकट्ठे किए, उनको आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और आपने बताया कि पूरे साल भर चलने वाला आपका कार्यक्रम है ये, तो निसंदेह इससे बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे अन्य लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन काम कर रहे हैं, जो कि वाइब्रेंट इंडिया के लिए वाकई जरूरत है। तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं, जैसा कि अमरीश सर ने बताया कि मैं थिएटर में काम करता हूँ, मैं नाटक करता हूँ, और लेकिन नाटक मेरा क्षेत्र नहीं था। बचपन से मेरे नाटक में आने का कोई ना तो इरादा था, ना ही उस तरह मैंने सोचा था। मैं बचपन में शुरुआत में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और हर 2 साल के बाद आपकी प्रेरणाएं बदलती रहती हैं। तो शुरुआत में मैं कुछ और सोचता था कि मैं मास्टर बनूंगा, और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो आपकी अलग अलग क्षेत्रों में आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं। और एक समय ऐसा है कि मैं नाटक की तरफ आ गया, और उसकी बहुत लंबी कहानी है कि जब जैसे बचपन में हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी ने अपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो उसका प्रभाव पूरे जिंदगी पर पड़ता है। तो मैंने समाज में, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रों में जो डिस्क्रिमिनेशन देखा, जो भेदभाव देखा बचपन से, तो उसने मेरे पर बहुत प्रभावित किया, मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। और मुझे लगा कि ये सब चीजें क्यों हैं। जैसे जब मैं स्कूल में, मेरे पिताजी मुझे एडमिशन के लिए ले गए, तो एक पब्लिक स्कूल ने मुझे एडमिशन से मना कर दिया कि उनको एक पंखा चाहिए था। शुरुआत में पैसे की बजाय पंखा, अलमारी, ऐसी चीजें मांगा करते थे स्कूल वाले। तो हम सरकारी स्कूल में गए, लेकिन एक लगा कि ये क्यों है। स्कूल के पहले दिन से लगा कि शिक्षा में भेदभाव क्यों है, और बच्चे जो हैं साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं, चमकते जूते पहनते हैं, हम खाकी निक्कर पहनते हैं, और हमारे पास जो घर के बनाए बैग होते हैं, उनके पास अटैचियां होती हैं। तो ये जो मानस पर जो शुरुआत में असर पड़ा कि ये जो भेदभाव है, ये कहाँ से आता है, कौन सी चीजें हैं जो हमें छोटा बड़ा बना देती है, चाहे आर्थिक रूप से बनाए, चाहे हमारे सामाजिक स्तर पर बनाए। तो ये इसने लगातार मुझे व्यथित किया, और इसका प्रभाव जो है आज तक मेरी जिंदगी पर है कि ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति समान है, हमारे संविधान ने सबको बराबर की हक दिया है, तो वहां पर भेदभाव क्यों आता है। तो ये जो गरीबी अमीरी से लेके तमाम अलग अलग तरह के भेदभाव थे, तो ये जब जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, मेरी जिंदगी आगे बढ़ी, और भी ज्यादा कड़वे होते चले गए, और समझ में आने लगा कि आपके साथ साथ आप पैदा होते हैं तो पूरा जो है समाज आपके आसपास बहुत सारे प्रतिबंध, रास्ते लगा देता है। आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपके पिता क्या काम करते हैं, आप किस गांव से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस प्रांत से हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं,
तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत आप मेरी जिंदगी को प्रभावित किया, जिससे जाके बड़ा बचपन में सभी बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, बढ़िया से सपने देखते हैं, लेकिन हमारे साथ ये था कि जैसे मैं आगे बढ़ा तो छठी क्लास में एक बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि ये तो शिक्षा में बहुत और भी ज्यादा भेदभाव है। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मास्टर जी ने मुझे बैठा दिया कि आप बैठ जाइए, आप पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा तुमको पढ़ना नहीं आता है। जबकि पहले स्कूल में 5वीं क्लास तक मैं प्रथम आया था, 6वीं क्लास में दूसरे स्कूल में गया तो मास्टर ने मुझे बैठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा है कि मैं ऐसा क्यों हो सकता है। ये घटना मेरी जिंदगी काफी महत्वपूर्ण रही है, इसलिए मैं इसका आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मास्टर जी ने बैठा दिया कि नहीं, आप नहीं पढ़ सकते हैं। मैं जिद में खड़ा हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने जो मेरे पास है 2 थप्पड़ मुझे लगा दिए। तो उसके बाद मैं और जिद में आ गया कि परिवार से मुझे जिस तरह का पालन पोषण हुआ था, वहां पर जो है ये था कि नहीं, गलत बात के लिए स्वीकार मत कीजिए और उसके खिलाफ खड़े होइए। तो मास्टर जी ने कान पकड़ क्लास से बाहर निकाल दिया। तो जब मैं बाहर क्लास के बाहर शोर मचा रहा था कि उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा। प्रिंसिपल आए, उन्होंने पूछा कि आप इसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मास्टर जी ने कहा कि इसको पढ़ना नहीं आता है, ये जो है स्पीच इम्पेयर्ड है। तो और टीचर प्रिंसिपल ने कहा कि स्पीच इम्पेयर्ड है तो आप इसको पढ़ने नहीं देंगे तो कैसे ठीक हुआ? अंततः घर तक मामला पहुंचा, फिर टीचर को मुझे पढ़वाना पड़ा। लेकिन उस घटना ने मुझे इतना असर पड़ा कि जो बच्चे और बच्चों से अलग होते हैं, हम उसको छाड़ देते हैं, हम उनको और ज्यादा कुंठाए देते हैं कि आप इस समाज के योग्य नहीं है, ये जो पूरा वर्ग है इससे आप अलग हैं। और ये जो भेदभाव है हर स्तर पर चलता है, चाहे आप कितने मर्जी बड़े हो जाइए, आपके कपड़े कैसे लोग आज भी देखते हैं, आप कैसी भाषा बोलते हैं उसको देखते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं उसको देखते हैं। तो ये जो उस घटना से हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने अपने स्पीच पे काम करना शुरू किया। जो इम्पेयर्ड स्पीच मेरी हकलाता था, तुतलाता था, उस पर काम करना शुरू किया। और आज भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अपने हर शब्द को मैं सुन रहा हूं, क्योंकि अगर शब्द को सुनने की ये जो आदत है, इसने मेरा बहुत फायदा किया। और ये जिंदगी भर मुझे दूसरों को सुनने से लेकर खुद को भी मैं सुनने की आदत मुझे पड़ी, तो इससे मेरा शब्द भी स्पष्ट हुए। लेकिन जब भी मैं अपने खुद को सुनना बंद करता हूं या हम अपने को सुनना बंद करते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं। तो ये घटना ने मुझे लड़ना सिखाया। और ये इसके बाद मैं जिंदगी भर जहां कुछ भी गलत हुआ मैं लड़ता चला गया। और मैं आगे पढ़ा, पढ़ाई में बहुत होशियार था और मैं पिताजी चाहते थे इंजीनियर बनूं, इंजीनियरिंग में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बैकग्राउंड था मेरा, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाया क्योंकि वहां भी मेरी जो है लड़ाई हुई और अंततः मुझे निकाल दिया गया। और निकाल दिया गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने जो है इसी बीच में एक फैक्ट्री के अंदर मतलब 325 रूम में पहली नौकरी की, स्टोर कीपर के असिस्टेंट के रूम में। तो वहां से मैंने जिंदगी को और सीखा, मजदूर के बीच में काम किया। तो मैंने देखा जिंदगी उतनी नहीं है, हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग उससे भी आगे जिंदगी है। और गांव से पृष्ठभूमि थी तो चीजों को समझने में आसानी हुई। और उसका मुझे लगा जिंदगी को अगर बदलना है, कुछ करना, पत्रकार बन जाइए। तो मैं पत्रकारिता में आ गया। पत्रकारिता में मैंने उस समय के श्रेष्ठ लोगों के आसपास में रहा, राजेंद्र माथुर जी, SP सिंह और जनसत्ता की जो संपादक जी थे, उनके साथ में तो जोशी जी। तो ये हमारा ये दौर ये था जिस समय पत्रकारिता बहुत ही ज्यादा बहुत उत्तेजक थी और बहुत ही खोज पर पत्रकारिता उस समय पूरे क्षेत्र में थी। तो मैं उस दौर में एक नया युवा की तरह घुस गया, मेरा कोई अनुभव नहीं था। लेकिन अंततः मैं कला की तरफ भी मेरा रुझान था, तो मैंने विज्ञान पर लिखा शुरुआत में, फिर लिखते लिखते मैं कला के क्षेत्र में लिखने लगा। तो राजेंद्र माथुर साहब ने मुझे कहा कि आप संपादकीय पृष्ठ पर नियमित रूप से कॉलम लिखिए। कॉलम लिखना शुरू हुआ तो उससे नाटक को देखना शुरू हुआ, तो वहां से मेरा नाटक में और जुड़ाव शुरू हुआ। तो नुक्कड़ नाटक करने लगा, मजदूरों के साथ करने लगा, छोटे छोटे समस्या भी करने लगा, छात्रों के साथ मैं काम कर ही रहा था। तो ये जो जिंदगी का जो बदलाव आया, लेकिन उसमें एक ही बात थी कि जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मुझे कुछ बदलाव के लिए काम करना है। पत्रकारिता भी मैंने 5-6 साल की, उसके बाद मैं टेलीविजन में चला गया, PTI टीवी प्लस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टीवी में चला गया। वहां पर टेलीविजन सीखा मैंने 2 साल तक। तो वहां पर उस समय ये इस समय चैनल नहीं आए थे, जो उससे पहले की बात है, 91 92 की है। तो वहां भी अपने समय के दिग्गज लोग वहां पर काम कर रहे थे, तो वहां भी कुछ सीखा। लेकिन अंततः मुझे एक तलाश थी कि जहां पर मैं कुछ कर पाऊं। और 92 में सब कुछ छोड़कर मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप बनाया। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग थिएटर करता था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में करता था, यहाँ भी मौका मिलता था वहां करता था। लेकिन
और 93 से मैंने अस्मिता बनाकर अस्मिता के साथ काम करना शुरू किया और सिर्फ एक मकसद था, जो कुछ भी गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, एक सकारात्मक समाज जो है, सकारात्मक सोच समाज के अंदर रखें और एक बदलाव की संवाद की स्थिति हम पैदा करें। हम अलग अलग लोगों के बीच में संवाद पैदा करें, रंगमंच का माध्यम यही होता है। तो नाटक में आने के बाद फिर मैंने अलग अलग तरह के नाटक किए, मंच के नाटक किए, भीष्म सानी से लेकर शेक्सपियर से लेकर महेश दत्तानी, तमाम लेखक जो है, सुधीर दीपक, बहुत ही मतलब लगभग 100 से ज्यादा मैंने नाटक किए हैं और लगातार नियमित रूप से नाटक कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ हमने नाटक, मंच के नाटक के साथ अस्मिता थिएटर ने नुक्कड़ नाटकों की तरफ भी ध्यान दिया। जब शुरुआत में मैं रंगमंच में आया था उस समय नुक्कड़ नाटक विशेष रूप से पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में थे। पॉलिटिकल पार्टियों में वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए नाटक करते थे और ज्यादातर उन्हीं के जो कल्चर विंग थे वो काम करते थे। जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो एक विचार मेरे दिमाग में था कि मैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा, अगर किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा तो मैं नुक्कड़ नाटक कैसे करूंगा। लोगों ने भी कहा नहीं नहीं, पार्टी के बिना नुक्कड़ नाटक नहीं होता। मैंने कहा नहीं, हम समाज में अलग अलग झंडों के बीच में भी अपनी सही बात कह सकते हैं, तो हम झंडे नहीं उठाएंगे। तो हमने सामाजिक मुद्दों पर नाटक करने शुरू किए, समाज के अलग जो मुद्दे थे उनको उठाया, जो बहुत ही हमारे रोजाना की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जो समस्याएं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आती है उनको हमने लिया। और नतीजा क्या हुआ, शुरुआत में बहुत आलोचना हुई, लोगों ने, विद्वान लोगों ने, जो नुक्कड़ नाटक के बहुत बड़े लोग थे, जो मानते थे नुक्कड़ नाटक से पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है या कोई विचारधारा के लोग कर सकते हैं, उन्होंने बहुत आलोचना की, बहुत अलग अलग तरह से चीजें हुई, लेकिन हम रुके नहीं। नतीजा क्या है कि आज 30 साल के बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे छात्र करते हैं, चाहे कॉलेजों में होता है, चाहे दूसरी टीमें करती हैं, नुक्कड़ नाटक सामाजिक आंदोलन से जुड़ गया है। समाजी बदलाव का नुक्कड़ नाटक एक सबसे बड़ा माध्यम बन गया है और उसकी बुनियाद रखने के लिए अस्मिता थिएटर ग्रुप ने बहुत काम किया। तो हमने जो एक अलग अलग विषयों को लेकर आए, उनके साथ साथ हमने नुक्कड़ नाटक को आंदोलनों से जोड़ा, छोटे छोटे आंदोलन जोड़ा, डोमेस्टिक वर्कर्स के आंदोलन था उससे जोड़ा, भ्रष्टाचार के आंदोलन जोड़ा, दामनी वाली जो घटना आई उसके बाद हमने उस आंदोलन में नुक्कड़ नाटक को जोड़ा। तो नुक्कड़ नाटक एक बहुत बड़ी ताकत बनकर समाज के सामने आया। आज स्थिति ये है कि आज से 25-30 साल पहले जब नुक्कड़ नाटक करते थे तो पुलिस वाले नाटक आकर रोकते थे, हमें जो है अक्सर उठा के थाने में ले जाते थे और हम कई बार थानों में नाटक करते थे। आज स्थिति ये कि समाज का हर तबका, पुलिस भी चाहती है कि नुक्कड़ नाटक हम करें और हम कई बार करते हैं, उनके तालमेल से करते हैं। आज नुक्कड़ नाटक जरूरत बन गया है समाज बदलाव का, डायलॉग करने का। तो ये जो काम जो है ये अस्मिता ने पिछले जो है 28-30 सालों के अंदर किया। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि युवाओं के साथ हमने काम किया। जब मैं रंगमंच करने की शुरुआत कर रहा था जो अलग अलग समूह के साथ, तो एक संस्थान में मैं गया था कि मुझे प्रशिक्षण लेना है। तो उस संस्थान ने कहा, मुझे देखा और कहा कि तुम थिएटर करोगे, अपनी शक्ल देखी है क्या? और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि जाओ जाओ अपने घर जाए, थिएटर नहीं कर सकते, एक्टिंग करेगा क्या? तो मुझे बहुत खराब लगा। जब मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया 93 में, तो मैंने एक बात तय की कि मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति है, हम किसी को शक्ल से, उसके भाषा से, उसके डिग्री से, कपड़ों से या प्रांत से, हम कैसे, उसकी बोली से कैसे तय कर सकते हैं कि वो कितना टैलेंट है या नहीं है? हम कौन होते हैं किसी का टैलेंट तय करने वाले? तो मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया और हमने अस्मिता में हर किसी का स्वागत किया। उसके बाद है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना आगे जाता है, उसके ऊपर है, लेकिन हर एक को एक मौका मिलना चाहिए समाज के अंदर, हर क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए। ये अस्मिता थिएटर ग्रुप ने किया और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उससे पहले आप रिजेक्ट करते थे, तो रिजेक्शन जिन एक तरह से मेरी ताकत बना। आज भी कहीं भी रिजेक्ट में होता हूँ, बहुत जगह रिजेक्ट हुआ हूँ। मेरे पास आज भी बहुत सारी चीजें नहीं, आज भी मैं तमाम समस्याओं के बीच में हम लोग रहते हैं। तो रिजेक्शन आपकी ताकत बना, उसको ताकत बनाया, और लेकिन हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा अस्मिता थिएटर का हुआ। और इसके अलावा रंगमंच को हमने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। उसमें हमने सरकार से पैसा नहीं लिया। हमारा पूरे भारत में ज्यादातर रंगमंच जो चलता है वो सरकारी अनुदान पर चलता है, कि सरकार अनुदान देती है और थिएटर ग्रुप चलते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हमें अगर नाटक करना तय किया तो मैंने तय किया है, किसी और ने तय नहीं किया है, तो मैं इसलिए अनुदान नहीं लूंगा। और अंततः हमने आज तक
इतने सालों बाद भी सरकार से एक पैसा अनुदान नहीं लिया है। हम अपने बल पर हैं, अपने दर्शकों के बल पर हैं। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ थिएटर वर्कशॉप के अंदर, उसके बल पर है, अपना पूरा खर्चा वहां से निकालते हैं। दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें बहुत है, बहुत सारी दिक्कतें, रंगमंच की जो दिक्कतें बाकी समूहों के साथ वो हमारे साथ भी है। रंगमंच करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक कल्चर पॉलिसी नहीं, और रंगमंच की जो समस्या है उसके बीच में हम काम करते हैं, लेकिन हमारा सकारात्मक रहता है कि आपसे समस्याओं को मत बताइए, ये समस्या वो समस्या नहीं, उसको खुद हल कीजिए, एक उदाहरण बनिए। और उदाहरण बनने के दौर में हमने रिजेक्शन बंद किया, सबको छात्रों को प्रशिक्षण करना शुरू किया। और शुरुआत में जो हमने, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने बहुत पढ़ा देखा, और समय हबीब तनवीर साहब के साथ मैं उनके बैक स्टेज में काम करता था, तो उनके रंगमंच को देखा, पूरे हिंदुस्तान के रंगमंच को देखा। फिर बाद में मुझे मौका मिला पूरी दुनिया में घूमने का, तो मैंने मतलब जो है अमेरिका में ब्रॉडवे से लेकर ऑफ ब्रॉडवे तमाम थिएटर देखा, जगह छोटे छोटे देखा। एडिनबरा थिएटर फेस्टिवल में मैंने नाटक प्रस्तुत किए, यूरोप में काफ़ी किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, रशिया में किया, तो बहुत जगह मैंने अनुभव, मेरा जो बाहर के थिएटर को देखकर भी बढ़ा, लेकिन मेरी जड़ें भारत ही रहा, मेरी जड़ें हिंदी का थिएटर रहा। अगर मैंने बाहर भी रंगमंच किया तो मैंने हिंदी में किया, मैंने अब वो भाषा में नहीं किया जिस भाषा में मैं सोचता नहीं। तो ये एक पूरी बहुत लंबी यात्रा रही है, और वो यात्रा आज भी जारी है। और कोरोना काल में रंगमंच की क्या भूमिका होनी चाहिए, सिर्फ बहुत दिक्कतें थी। हमने लगातार एक थिएटर फेस्टिवल किया, लगातार 225 दिन हमने लगातार किया, दर्शकों के पास हम उनके घर तक पहुंचे, क्योंकि हमारे दर्शक थे, तो उन तक पहुंचकर हमने नाटक किए। और उसके बाद सेकंड वे में हमारे रंगमंच, हमारे अभिनेता लोगों के साथ जुड़ रहे थे, मरीजों के साथ काम हम लोग कर रहे थे, तमाम दवाइयों से ले ऑक्सीजन से लेकर बेड से लेकर जहां भी जरूरत पड़ रही थी, हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो रंगमंच सिर्फ कोई अलग नहीं है, रंगमंच समाज से अलग कोई विधा नहीं है कि एक कोई बहुत ही ऐसी विधा है जो बहुत क्लासिक है, नहीं, समाज के साथ है। क्योंकि भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा था वो समाज के साथ ही जोड़कर उसको लिखा था, तभी वो पांचवा वेद भी माना गया। तो ये कि कलाएं जो होती हैं वो जब तक समाज के साथ नहीं जुड़ती हैं, समाज के सवालों के साथ नहीं जुड़ती हैं, तब तक कलाओं का मतलब नहीं है। उसकी सामाजिक जो महत्व है उसको करने की कोशिश हमारी रही है। और तमाम दिक्कतें हैं, दिक्कतों के बीच में हैं, आर्थिक दिक्कतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन और बहुत सारी जगह हम लोगों ने हमारा रंगमंच ऐसा है कि बहुत सारे लोग उस जगह सरकारी संस्थानों में हम लोग ब्लैक लिस्टेड भी हैं, वहां में नहीं बुलाया जाता कि ये तो ऐसा थिएटर करता है, वैसा थिएटर, तो हम, लेकिन हमें पता है कि हम थिएटर जो करते हैं समाज के हर वर्ग के लिए करते हैं। तो हमारा रंगमंच किसी एक के लिए नहीं है, संवाद के लिए, बातचीत के लिए, और वो संवाद ही हमारे को सार्थक बनाता है। हम सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं चल सकते, हमें को समाज में हर व्यक्ति को जानने की जरूरत है, समाज को समझने की जरूरत है। और कोरोना के पीरियड के बाद तो हमें और ज्यादा है संवेदनाओं की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की और मदद की जरूरत है। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है, जिसको बहुत सारी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सवाल जवाब में करेंगे तो ज्यादा और भी हम बात कर पाएंगे। तो अमरीश जी, आप कोई कुछ पूछना चाहें, करना चाहें, तो उसके लिए स्वागत है जी। धन्यवाद अरविंद जी, आपने संक्षेप में वो सारी बातें हमें बता दी जो किसी के लिए भी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो आपने मूल्यों की, अपने जीवन की, आपके पूरे देख के जो समझ में आता है, मुझे समझ में आया है, जो हमारे बाकी और अध्यापकों और छात्रों को जो इस सत्र में है उन्हें समझ में आया होगा कि आपकी पूरी जीवन यात्रा बहुत ही सीधी सपाट रही है, जहां पर आपने कभी भी किसी गलत चीज के साथ समझौता नहीं किया, और जो सही लगा आपने उसके साथ आप खड़े रहे। तो सबसे बड़ी जो चीज सीखने की है वो आपसे यही है। आपकी जो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे जिसने प्रभावित किया कि आपने कहा कि अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान होना चाहिए और आपको खुद उनको हल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत ही अपीलिंग बात है, क्योंकि हम सारे लोग जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो कभी इसको ब्लेम करते हैं, कभी उसको ब्लेम करते हैं, और हम कभी या ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरा आदमी उस समस्या को सुलझाएगा, और हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है और हमें भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए।
और खासतौर से जो आपने कोरोना काल में जिस तरह से आपकी संस्था ने काम किया, तो वो भी बहुत ही प्रेरणा की बात है कि ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं बस वही करेंगे और कोई भी परिस्थिति हो हम परिस्थितियों से विमुख होंगे, या एक एक आइसोलेशन में आप कोई काम कर नहीं सकते। मैं खुद भी इस बात में यकीन करता हूं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में सवाल हैं और लोगों के मन में भी होंगे। तो एक बात जो मैं जानना चाहता हूं, जैसे आपकी जो पूरी यात्रा थी, एक्सप्लोरेशन की यात्रा थी, खोज की यात्रा थी, कि आपने एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको किसी भी काम में संतोष नहीं मिला होगा, बट लेकिन आप लगातार करते गए तब तक जब तक आपको वो काम नहीं मिला जिससे आपको सबसे ज्यादा संतोष मिला। तो ये जो इस यात्रा में आपने कैसे तय किया कि आपको बस यही काम करना है या ये सिर्फ एक पड़ाव है, लक्ष्य कुछ और है, तो ये आपको समझ कब आया और कैसे आया? दरअसल आप जब एक युवा अवस्था के अंदर आप जो है समाज को बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ऊर्जा होती है, तो आप उस ऊर्जा को सदुपयोग करने के लिए ही अपने आप चीजें बनती चली जाती हैं। पहले शुरुआत में मुझे लगा कि मैं कविताएं लिखकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दूंगा, लेकिन लगा कविताओं की सीमाएं हैं। पत्रकारिता में आए तो वहां मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारे विद्वान उस समय तमाम, प्रभात जोशी से लेकर एसपी सिंह और रायल माथुर, बहुत बड़े विष्णु खरे और तमाम बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके संपर्क में मैं उस समय था। तो उनसे मैंने जाना कि जिंदगी के अलग अलग आराम कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, विचार क्या होता है और उसके पीछे का सोच क्या होता है और संतुलित व्यवहार क्या होता है। तो वो मैंने बहुत जाना। फिर कैसे खबरों के पीछे ढूंढ कर तलाश किया जाता है। फिर उस दौर के तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से मुझे मिलने का मौका मिला, क्यों मैं उसमें पत्रकारिता में था। और रवि वार्ता का जो रवि अंक आता था, उसमें जो परवेज भाई ने मुझे काफी जिम्मेदारी दे दी थी। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी मैं लगभग जो है बहुत एक्टिव था, कॉलम लिखता था। तो वहां से मुझे अलग अलग लोगों को जानने का मौका मिला और सीधे सीधे संपर्क का मौका मिला। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये अपने आप में पत्रकारिता में आकर मैंने समाज को और जाना, समझा। तो ये सबसे बड़े यहाँ विद्यार्थी बहुत सारे पत्रकारिता के हैं आपके यहाँ, तो उनके लिए कि जब तक आप समाज के साथ नहीं जुड़ोगे, सिर्फ खबरों से काम नहीं चलता। खबरों के पीछे क्या है, समाज का जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, या उसकी जो बुनियाद है, उसका राजनीतिक जो सोच है, जिस तरह से बदलता रहता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको समझना, जानना और उसको फिर समझ के आप कम्युनिकेट करना, उसमें बहुत जरूरी है। तो वो कुछ मुझे पत्रकारिता से मुझे काफी कुछ मिला। अगर मैं पत्रकारिता में नहीं आता तो शायद मुझे और जिंदगी नहीं समझ में आती। टेलीविजन में आया तो टेलीविजन में मुझे सब कुछ के, आप इतना बड़ा आपके भंडार होता है, उसमें आप कैसे एडिट करके आप जो है 40 मिनट की आपने आपके स्टॉक से आप 4 मिनट किया कैसे खबर बनाएंगे, या कैसे जो है आप जो है बहुत सारे स्टॉक इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, वो मैंने सीखा। तो ये सिलेक्शन, चयन की प्रक्रिया और विजुअल पावर जो होती है, उसको मैंने टेलीविजन से जाना। वो आज मेरे बहुत काम आते हैं। रंगमंच में दोनों काम आते हैं। रंगमंच चूंकि वो शब्दों का माध्यम है, संवाद का माध्यम है और दृश्य का माध्यम है, कि आप जो है समझाते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो सब मेरा जो मैंने जाना, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए रिसोर्स का काम करता है। तो रिसोर्स मजबूत होते हैं, तो रिसोर्स जब मजबूत होते हैं तो आप काम कर पाते हैं। तो यही तलाश करते करते मैं नाटक तक आया, और यहाँ भी काफी कुछ रहा कि कई बार लगा कि छोड़ दीजिए नाटक, कई बार डिप्रेशन भी आया, सब कुछ हुआ कि इसमें तो मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपको रोजाना कुआं खोदना पड़ता है, रोजाना चीजें करनी पड़ती है, सब कुछ हुआ। आज भी होता है, कोरोना काल के बीच बाद में भी हुआ, कैसे दोबारा से शुरुआत करें, और एक तरह से जिंदगी की नई शुरुआत की कोरोना के बाद। लेकिन हमारे पास जो है, हमारे बहुत सारे मित्रों की दोस्तों का बहुत सहारा है, और जब भी जरूरत पड़ती है दोस्त खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया तो लोगों को भरोसा है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और यहाँ पर आकर लगा कि जो मैं बात कहना चाहता था, उसमें सारे माध्यमों की बातचीत इसमें है। तो इसलिए मुझे संतुष्टि मिलती है कि, और दूसरा कि ये बहुत सारे लोग जिंदगी को प्रभावित करता है नाटक। चाहे जो मेरे विद्यार्थी आते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आता है, सोच के स्तर पर आता है, उनके विचार पर आता है, उनको आत्मविश्वास मिलता है, वो अपनी जिंदगी में एक नया सोच लेकर आगे बढ़ते हैं। चाहे वो जिंदगी में सिनेमा करें, थिएटर करें, या
कुछ और प्रोफेशन में जाएं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है कि हमने जिंदगी में कुछ नया जान लिया है, और ये आत्मविश्वास जो है आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है, और मुझे भी रंगमंच से ही ताकत मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा अंतिम पड़ाव तो नहीं है, पड़ाव तो अंतिम कभी नहीं होता है, लेकिन ये कि रोजाना आप एक्सप्लोर करते हैं, कल को मैं दूसरा नाटक करूंगा, मेरा दूसरा पड़ाव होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा संतोष मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बात को बिना डरे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी मतलब कहीं से और मदद लिए खुद आत्मनिर्भर होकर इसमें काम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। लेकिन अरविंद जी, आपने अपने लिए ये रास्ता चुना और चुनौतियों का सामना करके भी आप आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंचे। तो जो समाज में आपको काफी लोग मदद करते हैं, लेकिन घर से चूंकि आर्थिक परेशानियां रहती हैं, निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं, आपने बताया भी। तो ऐसे में आपका परिवार का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि एक जब आर्थिक पक्ष होता है तो आदमी, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी इमीडिएट फैमिली होती है। तो उस चैलेंजेस को आपने कैसे मीट किया? परिवार में जैसे पिताजी चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, और लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। उसके बाद निसंदेह किसी पिता के, मेरे पिताजी मास्टर थे और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। उनका सपना था, टूटा, दुख हुआ उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो करना चाहती करो, और पूरे भरोसे के साथ करो। उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया, पूरा सपोर्ट किया, और जब अखबार में लेख छपते थे तो वो खुश होकर अपने मित्रों को दिखाते थे, तो मेरा उत्साहवर्धन घर से मिलता था। अंत तक जब पिताजी जब तक रहे तो पिताजी से मुझे मदद मिलती रही, कोई हम सही परिवार में भाई बहन सभी से मदद मिलती रही। मेरी वाइफ जो है डॉक्टर संगीता, एक स्कूल में पढ़ाती है, और आज जो मेरा पूरा आर्थिक ढांचा जो है, घर जो है, डॉक्टर संगीता गौड़ चलाती है। मैं परिवार के बारे में कि राशन कब आना है, सब्जी कब आनी है, या कुछ होना है, उसके बारे में मैंने जो है शायद ही कभी सोचा हो। तो ये एक मुझे परिवार से हमेशा मदद मिली है। माता जी से मिली, पिताजी से मिली, बहन भाइयों से मिली, संगीता से मिली, और दोनों बेटियां में जो है काकुली और सावेरी, उन सबसे मिली। तो परिवार से मुझे उस तरह का आर्थिक दबाव या आर्थिक डिमांड कभी नहीं रही। तो उससे मैं निश्चिंत होकर, परिवार से निश्चिंत होकर काम कर पाया। मेरी सारी जो ताकत है वो एक तरह से वो अस्मिता थिएटर ग्रुप है, रंगमंच में है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मेरे पास एक संबल रहा, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। और उसलिए मुझे, वरना कोरोना काल में बहुत सारे रंगकर्मियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं था। लेकिन संगीता की वजह से हमारे कम से कम खाना पीना हो पाया, बेसिक चीजें हमारी हो पाती हैं। तो जो कुछ भी हमारा पूरा आर्थिक परिवार ही है, मेरा पूरा संबल, मेरा बैकअप, मेरी रीढ़ की हड्डी, जो कुछ भी है, परिवार ही है। अरविंद जी, जो आर्थिक पक्ष के बारे में ही अगर हम आगे बात करें, आपने इतनी परेशानियों के बाद भी थिएटर किया और आज तक किया और उसको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अगर कोई भी छात्र, जो आज छात्र हैं, हमारे छात्रों के सामने सारे करियर होते हैं कि वो प्रिंट में भी जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, टीवी में जा सकते हैं, थिएटर करते हैं, थिएटर में भी जाने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई थिएटर आज की तारीख में तय करता है कि उसे करना है, और उसको साथ में ये भी पता लगता है कि इतनी आर्थिक समस्याएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए डीमोटिवेटिंग होता है। तो क्या आपने अपने काम से कोई ऐसा एक आर्थिक ढांचा सोचा या तय किया या बताया कि उसका पालन करके लोग जो थिएटर में आए वो अपना मन की काम भी करें, समाज के लिए भी कुछ करें, और अपने को भी आर्थिक रूप से खड़ा कर पाए? क्या ऐसा कोई आपके पास मॉडल या कोई सुझाव है जो आप देना चाहेंगे? निसंदेह 20 साल 25 साल पहले और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। आज रंगमंच में आर्थिक अभाव जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर निर्भर है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर आता है नया छात्र तो उसको अपना आर्थिक रूप से उसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिन दिक्कतों से हम निकले हैं या निकलते हैं। क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर आप रंगमंच करते हैं तो आपकी मदद के लिए देश राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मौजूद है। एक तो अनुदान वाला है जो बहुत मजबूत हिस्सा है जिसको लोग ले सकते हैं। दूसरा कि स्कूलों में, कॉलेजों में रंगमंच के लिए बहुत जगह बनी है, वहां पर वर्कशॉप्स के लिए बहुत जगह है, फैकल्टी के लिए बनी है। तीसरा जो हिस्सा है वो समाज सेवा में लगी कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एनजीओ का है। जो एनजीओ
अभी नुक्कड़ नाटक में जो सामाजिक बदलाव आया, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। तो नुक्कड़ नाटक की बहुत जरूरत होती है, तो एनजीओ की जरूरत होती है। चौथा हिस्सा है कि आप इसको बहुत से कॉर्पोरेट में भी रंगमंच की जरूरत पड़ती है। वो अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए रंगमंच की चीज इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टेलीविजन है, वेब सीरीज है, सिनेमा है, वहां तो अभिनेता रंगमंच की जो सक्षम अभिनेता, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जो उसको डिमोटिवेटिंग नहीं है, बहुत अच्छा क्षेत्र है जहां आप, अगर आप इसमें क्षेत्र में लगातार लग रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। आप जो यहाँ से सिनेमा में या वेब सीरीज या टेलीविजन में चला जाता है, उनकी स्थिति देखिए, वो बहुत ही ज्यादा, और भी उनकी स्थितियां बहुत बदल जाती हैं, क्योंकि अच्छे अभिनेता की जरूरत है। और सिनेमा का पूरा एक्टिंग का स्तर जो है वो थिएटर वालों ने ही बदला है। बलराज साहनी से लेकर दीपक डोबरिया, कंगना रनावत हुई, या इमरान से लेकर तमाम लोग जो है, पंकज कपूर, नसीर, तो ये बहुत मतलब सैकड़ों की ऐसे कलाकारों की लिस्ट है जिन्होंने रंगमंच के माध्यम से सिनेमा में का पूरा एक्टिंग का पैटर्न बदल दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपकी अच्छे अभिनेताओं की हमेशा जरूरत है, अच्छे रंगकर्मियों की हमेशा जरूरत है। तो आर्थिक रूप से अब थिएटर पहले वाला नहीं है, आप आराम से संपन्न होकर काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत की जरूरत है और योजना की जरूरत है जी। और ये जो आमतौर से एक होता है कि किसी भी प्रोफेशन में काम करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए भी इतने 4-5 साल चाहिए, किसी भी सीए बनने के लिए 3-4 साल की जरूरत है। आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं, उसके लिए 4-5 साल की मेहनत चाहिए। तो वो मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने थिएटर किया, 1 साल रंगमंच किया और आपने कहा कि रंगमंच में तो रंगमंच बहुत स्ट्रगल है, रंगमंच में, ऐसा नहीं। उसके लिए पूरी मेहनत चाहिए और करके आप जब आएंगे तो बहुत सारी दरवाजे, बहुत सारे मौके आपके लिए मौजूद हैं और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए और स्वागत है। नहीं अरविंद जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई और इतने सारे एवेन्यूज आपने छात्रों के लिए बताए। तो उनको, कुछ हमारे छात्र जो बहुत ही कमिटेड हैं थिएटर के लिए, तो उनको एक उम्मीद बनेगी। और जो आपने कहा ना कि थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है, चीजों को एक योजना बना के काम करने की जरूरत है, और एवेन्यूज हैं। मैं खुद काफी समय तक मैंने थिएटर किया है और बनारस में, इलाहाबाद में काफी थिएटर किया, और बहुत सारे पहले भी एवेन्यूज थे, हम लोग यूज नहीं करते नॉर्मली। मैंने भी जब शुरू किया तो अपनी जेब से पैसा लगा के रंगमंच किया, बट धीरे धीरे समझ में आया कि सरकार के पास योजनाएं हैं जिनसे पैसा लिया जा सकता है। तो यूपी संगीत नाटक एकेडमी से लेके केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी तक काफी सारा मैंने भी काफी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा के काफी समय तक रंगमंच किया। तो आगे बढ़ते हैं अरविंद जी। एक आपकी बात मुझे बहुत ही अपीलिंग लगी कि आपने कहा कि रिजेक्शन से नहीं कभी घबराना है, और आपकी लाइफ में बार बार इतने तरह के रिजेक्शंस हुए, लेकिन आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़े। आज का जो यूथ है, आज का जो स्टूडेंट है, वो इस प्रॉब्लम को बहुत गहराई से महसूस करता है। उनको लगता है कि अगर असफलताएं मिली तो अब आगे करियर का क्या होगा, आगे भविष्य का क्या होगा, और हम इन सारी समस्याओं से जूझते हैं। और स्टूडेंट्स को तरह तरह से हम समझाने की और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने जीवन के अनुभव से, आपने जब जब रिजेक्शंस को फेस किया, तो आपकी कौन सी ऐसी मानसिक स्थिति थी जिससे आपने उस चीज से स्ट्रगल की, उससे संघर्ष किया, उसको पीछे छोड़ा और आप जीवन में आगे आए? तो आप कुछ ऐसी प्रेरणा हमारे छात्रों को अगर दे पाए तो अच्छा होगा। जिंदगी में जब भी आपको बताया जाता है कि आप अक्षम हैं, समर्थ नहीं है और आप इस काम के लायक नहीं है, आप बहुत निराशा होती है, आप दुख होता है, कई दिन तक आप कुंठाओं में रहते हैं कि क्या वजह है। अगर कोई कहता है कि आप आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, तो बहुत ही कई बार बड़ा लगता है, अरे मैंने तो शक्ल नहीं बनाई थी, भाषा मेरे जहाँ से आई, परिवार से आई, या मेरे आर्थिक स्थिति कैसी है, कपड़े, तो आपके काबिलियत की बजाय आपको बाहर से देख के रिजेक्ट तब जब किया जाता है, वो हमारे जो मानसिकता हमारे समाज में है, जो हम बचपन से लेकर आते हैं, ज्यादातर वहां से होता है। हम किसी पसंद और नापसंद रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि हमारे शक्ल देखते साथ ही उसको हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता।
बिना जाने समझे। तो ये रिजेक्शन हर जगह आता है। कई बार आप बहुत लायक होते हैं और किसी जगह आप जाते हैं और वहां से आपको कह दिया जाता नहीं नहीं, और किसी नालायक को, मतलब नालायक मतलब जो सेकेंडरी है, जो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत दुख होता है। आपको लगता है कि अरे क्या, इस क्षेत्र में छोड़ दीजिए। ऐसे अनुभव हमारे पास रोजमर्रा में आते हैं जिंदगी में। लेकिन उससे निकलने का तरीका यही है कि आप ये जानिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी क्षमता को पहचान नहीं रहा है, वो खुद जो है पीड़ित है रिजेक्शन की फोबिया से। तो वो रिजेक्शन फोबिया से पीड़ित है, तो आप उससे प्रभावित क्यों होते हैं? आप व्यक्ति हैं, आपकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, बहुत पड़ता है। कोई मुझे कह दे कि भाई आप ऐसा है, आपको बोलना नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आप बोल, तो हमको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन वो आपको इंटरनल डिवाइस डेवलप करना पड़ता है और कोई बाहर से नहीं आता, कोई मोटिवेशन बाहर से नहीं दे सकता है। अगर मैं भी आपसे बोल रहा हूँ और ये आप सोचो कि आपको मोटिवेशन देना नहीं दे सकता हूँ, जब क्योंकि वो आपको ही लाना पड़ेगा और वो आएगा आपके रिसोर्सेज से। आप क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या लक्ष्य रखते हैं, या आपके अंदर जो कितना जुझारूपन है। ये जुझारूपन का जज्बा जो होता है ना, वो बहुत जरूरी है। और लड़ना खुद से भी जरूरी है। सबसे बड़ी लड़ाई आपकी खुद से होती है, अपनी कमजोरियों से होती है। तो लड़ाई अपने से लड़िए, अपनी कमजोरियों से लड़िए। जैसे आपकी जो भी कमजोरी है, आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको सुबह से लेकर जिंदगी मतलब शाम तक क्या काम करना है, आप उसके बीच में क्या क्या नहीं करना है। जैसे मैं अपने छात्रों को हमेशा कहता हूँ कि ये क्या करना है सबको पता होता है, ये क्या नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है। कि अक्सर उस पर नहीं ध्यान देते तो हम उसको करते रहते हैं, और जो क्या करना है वो कमजोर पड़ जाता है उसकी वजह से। जी। कि मुझे तय है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे सुबह मुझे अपना जो है अपने ये आलस नहीं करना है। मुझे कुछ भी हो जाए, अगर शरीर भी कहता है कि आज आराम कर लो, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे उठना है, काम करना है। और मान लेकर है कि चलिए कमरे की सफाई जो मैं कल कर लूंगा, ये मेरा नहीं, लड़ाई लड़नी नहीं, क्यों कल सफाई करेंगे, आज ही करेंगे। जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ आने से पहले मैं यहाँ पर जो है मैंने आधे घंटे सफाई की है, खुद ही पोछा मारा है, तो कोई दूसरा नहीं मारेगा ना। मैं किसका, क्योंकि मुझे अपना काम खुद करना है। मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं है ना, हम रख सकते हैं, इस स्थिति में नहीं है। तो हमें सारे काम जो है, चाहे मेरा ये स्टडी रूम हो, चाहे मेरा रिहर्सल रूम यहाँ साइड में है, कहीं पर पूरा मेरा जो जगह है, हमें खुद को काम करना है। तो ये अक्सर जो हमारा जो हमें बचपन से कहा जाता है कि दूसरा काम कर लेगा, नहीं, हमें खुद को करना है। तो उसे खुद से ही लड़ना पड़ेगा जहां भी हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, तो अपने आप ही जिंदगी में कुछ करने का लक्ष्य मिल जाता है। और सबसे बड़ा कि अपने माँ बाप को याद करिए, उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जो हमें बड़ा करने में, लालन पालन में हमारे माँ बाप का बहुत हाथ होता है, उनके संघर्ष का बहुत हाथ होता है, तो उसको जानना जरूरी है। तो आप अपने से लड़िए, अपने से लड़ाई कीजिए, अपनी कमजोरियों से, और क्या नहीं करना तय कीजिए। आप जो है ये सब बहुत सारी चीजें जो होती है ना, रिजेक्शन, ये सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, आप किसी को रिजेक्ट मत कीजिए। कोई अगर आपको लगता है कि ये उसके योग्य भी नहीं है, तो उसको जो है आराम से सलीके से की बात करके उसको संतुष्ट करके ही आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रिजेक्ट मत कीजिए कि वो जिंदगी में हतोत्साहित हो जाए। धन्यवाद अरविंद जी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सवाल पूछने के लिए उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं। संभावना ये भी है कि कुछ अध्यापक भी ऐसे हैं जो शायद सवाल पूछना चाहते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र सेशन में हैं और जो अरविंद जी से सवाल पूछना चाहते हैं, वो कृपया ऑन स्क्रीन आए और अपना सवाल पूछें। सर, समाज पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये सब हमारा इक्वल होता है। तो सर, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमारा मैसेज ध्यान रखें और उसे याद रखें। कुछ भी स्क्रिप्ट होती है उससे पहले रिसर्च करना जरूरी होता है कि आपके रिसोर्सेज क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। आप कुछ भी कहने से पहले उस पर जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी वो दिन नाम से, वो पीरियड्स के ऊपर था, मासिक धर्म के बारे में नाटक था, जो एक तरह से टैबू था। बाद में उस पर फिल्म भी आई, पैडमैन फिल्म भी आई बाद में अक्षय कुमार की। लेकिन उससे पहले लगभग जो है मतलब 8 साल पहले मैंने उसका स्क्रिप्ट लिखा। तो जब स्क्रिप्ट मैंने लिखने लगा तो लोगों ने कहा ये विषय तो कौन सुनेगा, ये तो ऐसा विषय है कि आप लड़कियों का विषय है, आप क्यों इस पर लिख रहे हैं।
लेकिन हमने ग्रुप की लड़कियों के साथ बैठे, उनसे बातचीत किया, उनकी समस्या को सुना, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा। और जब हम नाटक करें, स्क्रिप्ट सिर्फ अंतिम नहीं होता है, स्क्रिप्ट दर्शकों के बीच में जाकर बनता है। जब हमने नाटक करने के लिए गए तो एक बहुत बड़ा कॉलेज था दिल्ली विश्वविद्यालय का, नाटक करते करते वहां पर जो है नाटक के बीच में बच्चे लड़के हंस रहे थे, लड़कियां थोड़ा सा संकुचित भाव से खड़ी थी वहां पर। एक लड़का बोला, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप था, कि अरे क्या दिखा रहे हो, बंद करो नाटक। तो मैं साइड में खड़ा, मैं क्यों भाई, क्यों बंद करे, क्या गलत है? बोले क्या दिखा रहे हो, लड़कियों की बायोलॉजी दिखा रहे हो जी, हमें सब पता है। सारे लड़के जितने थे बहुत ठाका मार कर हंस पड़े, और ठाका मार कर हंस पड़े। उनको अच्छा लगा कि भाई ये तो लड़कियों के बारे में। मैंने कहा अच्छा लड़कियों की बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, अच्छा ओके, एक काम करें, नाटक बंद करें। अपने एक्टर्स को मैंने बैठाया कि बैठ जाइए, और उसको बुलाया बीच में, आ जाइए भाई साहब बीच में, हम लड़कियों की बायोलॉजी के बारे में बात करें, तो आप एक काम करते हैं, हम लड़कों की बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उसको समझ नहीं आया, उसको लगा कि वो तो हीरो बन गया, सारे लोग लड़के हंस रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा बताइए भाई साहब, जब आपको पहली बार नाइट फॉल हुआ था तो आपने अपने मम्मी को बताया था, पापा को बताया था? तो उसके पास का आंसर नहीं था, और जो लड़के हंस रहे थे वो भी इधर उधर देख रहे थे, अरे ये क्या ठीक, क्या सवाल पूछ लिया। और यहाँ पर जो लड़के हैं इस क्लास के अंदर, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट फॉल। हो सकता है कुछ लड़कियों को शब्द के लिए अनजान हो लड़कियां। तो जिस तरह से लड़कियों के साथ अपने मतलब मासिक धर्म की स्थिति है, वैसे लड़कों के साथ जो है नाइट फॉल भी है। तो लेकिन ये बात जो है ये कम्युनिकेट नहीं होती है। लड़कियां अपने उसके बीच में जब शुरुआत में नाइट फॉल हो तो उनको लगता है क्या हो गया, हम नाम मर्द तो नहीं होने वाले हैं, या कोई समस्या तो नहीं होने वाली है, तो उनके लिए समस्या होती है। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई ये देखिए, आप बायोलॉजी, जिस बायोलॉजी की बात करें उसी बायोलॉजी की वजह से, मासिक धर्म की वजह से आप पैदा हुए हैं, और आप इस नाटक का मजाक उड़ा रहे हैं। आप फिर उस लड़के ने कहा नहीं सॉरी सर, मुझे, उसने कहा वाकई जो है मुझे गलत लग रहा है कि मैंने गलत पूछा। नतीजा क्या हुआ कि नाटक के बाद बहुत सारी बातचीत हुई है, और हमने उसके बाद नाटक में सीन जोड़ दिया है। जब भी हमारा नाटक होता है, वो दिन नाम का नाटक, एक कोई भी बाहर से हमारे एक्टर आता है, नाटक रुकवाता है, उसको बीच में लाते हैं, सवाल करते हैं कि भाई तू बता जब क्या हुआ था। तो उसका जब वो जो है ऑडियंस से पूछते हैं, तो ऑडियंस में लड़के भी एजुकेट होते हैं कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट लिखते हुए हमें बहुत सारे डिटेल की ध्यान रखनी पड़ती है कि साइकोलॉजी क्या, उसका असर क्या पड़ेगा, और आसपास उसके बारे में सवाल क्या है। सवाल खड़े करने के साथ साथ उसे समाधान भी आप रखिए। सिर्फ समस्या को खड़ा करना काफी नहीं है कि समस्या खड़ा कर दिया, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, लेकिन उसके साथ साथ आप बताइए। जैसे जेंडर पे हम नाटक करते हैं, हमारे नाटक है दस्तक नाटक, जिसके 10,000 से ज्यादा शोज हुए। उस नाटक में हमने जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे, वो काफी प्रोसेस से हमने निकली कि हमें क्या क्या उस नाटक में करना है। हमें ईव टीजिंग करना है, एसिड अटैक करना है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस भी करना है, भ्रूण हत्या भी करना है, रेप सीन भी करना है, यौन हिंसा भी करना है। तो कैसे सारी चीजें डालें, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हम रोजाना चीजें देखते हैं, तो उसको उनको सब पॉइंटर बनाते चले गए, करते गए, और फिर जब आप जनता के बीच में, दर्शकों के बीच में गए, वहां वो नाटक मैच्योर होता चला गया। तो हमेशा स्टेप को आप एक दर्शक की दृष्टि से भी देखिए, सिर्फ ये मत देखिए कि आप दर्शक को सिखाना चाहते हैं। ये जो एक हमारे इंटेलेक्चुअल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आप अचानक समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज को कुछ नहीं पता उसको बताना चाहते हैं, नहीं, ये गलत है। समाज आपसे ज्यादा जानता है। सिर्फ समाज, आपके नाटक उसके साथ एक संवाद का काम करते हैं, उन विषयों पर जिन विषयों पर समाज शायद बात नहीं करता है, समाज उसको इग्नोर करता है, समाज उसको एग्जिस्टेंस के साथ रखता है अपने साथ। तो एक संवाद रखें और समाज से सीखे। समाज को में बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन संवाद से होता है, डायलॉग से होता है। जी शुक्रिया। और सैयद हैदर। सैयद जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कहा है कि जो थिएटर है वो आर्ट्स का एक बैक स्टेज है, और आपने कभी खुद को केंद्र नहीं बनने दिया, मतलब एक सेंटर नहीं बनने दिया। तो जिस हिसाब की अभी आजकल की मतलब अपने देश की हालत है, कि आपको नहीं लगता कि थिएटर को अभी कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, क्योंकि थिएटर में वो कंटेंट ज्यादा है जो कि इस देश को चाहिए मेन स्ट्रीम से ज्यादा, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा, जी सर, बोलो सैयद बोलो। क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है अपनी सोसाइटी में कि जिनके आगे अगर आप थिएटर का नाम लें तो उनको मूवी हॉल लगता है, मतलब उनको नहीं पता कि थिएटर क्या है, और वो मूवी हॉल उसका मतलब निकालते हैं। तो ये सवाल था मेरा सर। सैयद, उस इंटरव्यू में मैंने थिएटर के बारे में बात नहीं की थी, थिएटर बैक स्टेज की बात नहीं की थी। मैंने कहा मैं बैक स्टेज हूँ,
हमने जो है थिएटर, हमने रंगमंच ने, जैसे आपके माँ बाप होते हैं, माँ बाप का आपका बैक स्टेज है, आप कहीं भी जाएंगे आपको हर समय मदद के लिए खड़े होते हैं, आपको कुछ भी सवाल पूछना हो, कोई दिक्कत हो, माँ बाप ही आप पीछे सहारा बनते हैं आपके। तो मैं उस सहारे की बात की थी, रंगमंच की, समाज का वो बिना खुद को सेंटर में लाए, बिना खुद को सेंटर में लाए का मतलब है खुद को इम्पोर्टेंस दिए बिना, अगर सेंटर में आ जाएगा कि मैं ही हूं, तो उसको मैंने कहा था खुद को सेंटर में लाए बिना हम समाज में जो समस्याएं, जो स्थितियां, उसका बैकसेस बने, हम समाज में उन चीजों को समाधान की तरफ बढ़े, उनको चीजें करें, उसकी बैकसेस की बात की थी मैंने, कि हम अपना काम अपने को ही केंद्र में न रखे, व्यक्ति केंद्रित ना हो। आप बात समझ ना, व्यक्ति केंद्रित ना हो, इसी तरह से ये ना हो कि अस्मिता ही केंद्रित हो, नहीं, हम काम कर रहे हैं तो हम जो भी है उसका जब बैक स्टेज के बिना क्या मध्य समाज कुछ भी काम हो सकता, नहीं हो सकता। रंगमंच भी हम करते हैं, उसके लिए बैक स्टेज होता है, जो बैक स्टेज आपकी लाइट से लेकर, उसमें मैंने यही बात की थी, और मेरा आपने जो है टेड टॉक देखा होगा उसमें, तो उसी में था ये, तो उसमें यही बात की थी कि जो समाज में जो कुछ भी समस्याएं होती है, मंच पर हम जो भी करते हैं उसके लिए प्रकाश व्यवस्था, इसके राइटर तक, कॉस्ट्यूम वाला, स्टेज को बनाने वाला, बैक स्टेज हमारे लिए खाने का प्रबंध करने वाला, या हमारे विंग्स में हमारे सेट प्रॉप्स को लेकर खड़ा होने वाला, वो सब होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये कहा था रंगमंच की भूमिका समाज में इस तरह से होनी चाहिए, जहां जरूरत पड़े वहां आ जाए, वो सिर्फ जो है केंद्र में ना हो, केंद्र में तो व्यक्ति है, हमारा समाज है, हमारे साथ है, हमारे तो। और जहां तक आपने दूसरा सवाल किया कि रंगमंच को केंद्र आखिर आगे बढ़ के समस्याओं के साथ करना चाहिए, रंगमंच को काम करता है। अब भारत के प्रमुख आंदोलनों में जितने भी, तो रंगमंच की भूमिका रही है, और उसमें बहुत सारे सवालों को लेकर नुक्कड़ नाटक ने अच्छी भूमिका अदा की है, और निसंदेह हमारे यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा है, और रंगमंच में बहुत ये धीरे धीरे अपनी चीजों को कर रहा है, और जिम्मेदारी रंगमंच के पास ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है जो अन्य क्षेत्रों के अंदर भी है, उससे ही होता है। और नाटक अभी धीरे धीरे बहुत पहुंच चुका है। पहले नुक्कड़ नाटक के बारे में लोग जो है जब बात करते तो कहते अच्छा नुक्कड़, वो सीरियल वाला नुक्कड़, एक समय में अमृत आपको याद होगा, नुक्कड़ सीरियल आया करता था, तो जब नुक्कड़, अच्छा नुक्कड़ वो दिखा रहे हो, उनको समझाना पड़ता था, नहीं नहीं आप देख लो। तो ये वहां हमारी शुरुआत वहां से भी होती थी। आज जो है सब लोग जानते हैं कि काले कुर्ते वाले नुक्कड़ नाटक करते हैं, और किसी से बात करेंगे और आपके मोहल्ले में आए तो आओ और नाटक दिखाएंगे। तो ये धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक बढ़ा है, और नाटक भी बढ़ रहा है। रंगमंच के लिए कॉलेजों बहुत जगह बनी है, पहले नहीं थी, आज से 25-30 साल पहले जगह नहीं थी, अब बहुत बड़ी है। रंगमंच में रोजगार बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा है, तो स्थितियां बदल रही हैं। बस जैसे मैंने कहा कि अमृतसर जानते हैं, उनको उनका बैकग्राउंड है कि हमारे यहाँ कल्चर पॉलिसी नहीं है। कल्चर पॉलिसी न होने की वजह से बहुत सारी रंगमंच, जैसे आपने कहा कि आज भी वो सोचते हैं कि सिनेमा है, उसकी वजह से ही ये समस्याएं हैं। क्योंकि हमने आज भी, अगर आप देखेंगे, रंगमंच की सबसे बड़ी समस्या है कि आज भी हमारे पास एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, प्रशिक्षण का अभाव बहुत ज्यादा है, और उसमें भी प्रशिक्षण के लिए जो आप प्रशिक्षित छात्रों को लेते हैं जिन्होंने पहले 3-4 साल थिएटर किया हो। कोई ऐसा संस्थान नहीं है दुनिया के अंदर, आईआईटी के अंदर जो इंजीनियर को नहीं लेते हैं, मेडिकल के अंदर मेडिकल डॉक्टर को नहीं लेते हैं, वो प्रारंभ को लेते हैं। तो ये जो हमारी कंट्राडिक्शंस है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कल्चर नहीं किया है, अब स्पेशली इन ड्रामा, तो उसकी वजह से भी है। ये लंबा विषय है, लेकिन निसंदेह पहले से बहुत स्थितियां बेहतर है, और युद्ध जो रंगमंच में आ रहा है वो रंगमंच की और समाज की ताकत है। कीर्ति माथुर सवाल पूछे। जी कीर्ति। गुड आफ्टरनून सर। तो मेरा सवाल यही था, जैसा आप बताए थे कि पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ड्रामा और थिएटर के अंदर, तो आपने 90s के जमाने में भी ड्रामा एंड थिएटर किया और अभी भी आप कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, लोगों के ओपिनियंस कैसे चेंज हो, या फिर आपने स्क्रिप्टिंग में क्या चेंजेस किए, वो आप बता सकते हैं सर? पहले से ज्यादा दर्शक आते हैं नाटक देखने के लिए, और दर्शक से ज्यादा पहला है कि पहले से ज्यादा एक्टर बनने के लिए युवा आता है, और उससे भी बड़ा जो चेंज है, जो समाज में चेंज है, पिछले 30 सालों में, 30 साल पहले आपको जो फीमेल एक्टर्स के लिए तलाश करना पड़ता था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, उनके घरों में बात करनी पड़ती थी, और उनको जो है आपको समय से लेकर लाना पड़ता था। एक तरह से आपको उनके गारंटी लेकर पेरेंट्स से आते थे। किसी भी ग्रुप के अंदर 1 से 2 से ज्यादा लड़कियां नहीं होती थी। आज स्थिति ये है
कि मेरे अपने ग्रुप में 62 लड़कियां हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, यानी कि समाज में रंगमंच का जो भरोसा है बहुत बड़ा है। हमारी थिएटर वर्कशॉप के अंदर लगातार नई लड़कियां आती हैं और रंगमंच करना चाहती हैं, तो समाज में पहुंच रंगमंच की बहुत बड़ी है। और पहले शुरुआत में 4-5 कॉलेजों में दिल्ली में ड्रामा सोसाइटी होती थी जो थोड़े एलिट कॉलेज थे। आज हर कॉलेज के अंदर ड्रामा सोसाइटी है। हम लोगों ने बहुत काम किया, जगह जगह प्रशिक्षण दिए, कॉलेज वर्कशॉप किया, तो नतीजा क्या है कि आज हर ड्रामा कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी, जिन ड्रामा सोसाइटी ने बनाते हैं, तो ये एक परिवर्तन है, स्कूलों में नाटक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम नाटक के माध्यम से सामाजिक बदलाव की पर बातचीत होती है जो पहले नहीं होती थी। और स्क्रिप्ट के स्तर पर आपने जो कहा, पहले जो नुक्कड़ नाटकों की स्क्रिप्ट थी ज्यादातर राजनीतिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर लिखी जाती थी कि आप अपनी पार्टी का प्रचार कैसे करते हैं, और उसी तरह के संगठन थे। इप्टा से लेकर जननाट्य मंच तक वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन और उसके बाद जैसे ही चीजें बदली, जैसे हमने किया कि हमें किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है। मुझे सुनने वाले भी तमाम पार्टी के लोग होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग विचारधारा के होंगे, तो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम किसी झंडा लेकर नहीं करेंगे, इसके या उसके पक्ष में बात नहीं करें, वो बात करें जो मेरे समाज, मेरे देश और मेरे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो सवाल हम उठाएंगे जो सवाल बदलाव की तरफ ले जाते हैं, जो मूल ढांचा समाज का है, जहां से परिवर्तन की जरूरत है। जैसे मेरा एक नाटक है, परिवर्तन की जो बात की, एक नाटक है मर्द नाटक मेरा, हमने मर्दानगी पर बात की। तो मर्दानगी की, क्योंकि यौन हिंसा जो होती है वो क्यों होती है, हम बच्चों को शुरुआत से मर्द बनना सिखाते हैं लड़कों को। हम लड़कों को जब मर्द बनना सिखाते हैं तो उनको तमाम वो चीजें सिखाते हैं, तू आदमी है, तू लड़का है और इसलिए तू अलग है, तुझे ये करना, तू रो नहीं सकता, तू पिट के नहीं आ सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, और तुझे जो कमाना है तो ये करना है, सारी जिम्मेदारियां सब कुछ जो है उसके ऊपर हम इतना कुछ लाद देते हैं कि वो मर्द बनने के चक्कर में वो उसका पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है, ना अपने दुख को बता पाता, रो पाता है ना कभी। और इसलिए वो अगर मर्दान के चक्कर में हिंसा होती है, सड़कों पर हिंसा होती है, घर में हिंसा होती है, मर्दान के चक्कर में पति पर अपनी माँ बहनों पर को अपशब्द बोलता है, या अपने दोस्त को बोलता है, या पत्नी हो जाती है, पत्नी के साथ जो यौन हिंसा में चला जाता है, मतलब वो मारपीट में चला जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो उसको लगता है क्योंकि वो श्रेष्ठ है समाज में, मर्द है। तो हमने इस पर किया, नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें, धारणाएं टूटी, क्योंकि आप नए विषय लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा विषय है कि जो अगर मर्दानगी हम समझ जाए, मर्द बनाने घरों से बचपन से शुरू बंद कर दे, और ये बनाने वाले सभी होते हैं, माँ बाप भी बनाते हैं, दादा दादी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो उसको बनाना बंद करें तो हम सहज होंगे। फिर यहाँ पर जो है हम जो लड़के लड़की का भेद जो है, वो श्रेष्ठता का भाव जो बचपन से दिया है था वो बंद होगा, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारा निदान हो सकता है। तो ये सोचने का जो तरीका, परिवर्तन का रास्ता है, वो ऐसे होता है कि हम सोच के साथ डायलॉग करें। तो ये अंतर जो कृति नाटकों में आ रहा है। जी, प्रिया मिश्रा अपना सवाल पूछो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम पे जो आपने सामाजिक मुद्दों की बात की, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज जो धार्मिक एक मुद्दा बन चुका है धर्म, तो उसमें एकता लाने की जो बात होती है, तो हमने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स देखे हैं, चाहे फिर वो एडवर्टीजमेंट हो, टेलीविजन हो, अलग अलग तरीके से एकता की बात करते हैं, लेकिन लोग उसे गलत फॉर्म में लेते हैं। तो जब हम थिएटर की बात करते हैं और जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने काम किया है, तो इस चीज को हम एकता की बात जो है बैलेंस फॉर्म में स्क्रिप्ट में लाकर कैसे कर सकते हैं कि थिएटर एक ऐसा जरिया बन जाए जहां से हम एकता की एक अच्छी बात कह सके, क्योंकि बाकी आर्ट फॉर्म मुझे अभी वो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी प्रिया, तो शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है, धर्म के नाम पर जो कट्टरपन है वो मुद्दा है, कि लोग अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए और उसमें भी राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने को मजबूत करने के लिए या दूसरे कमजोर करने के लिए अपना इस तरह से धर्म का दुरुपयोग करते हैं। कोई भी धर्म, दुनिया कोई भी धर्म कभी भी वो गलत नहीं है, व्यक्ति को गलत नहीं बनाता है, हमारे व्यक्तिगत विश्वास है। लेकिन जब धर्म को हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो वहां से समस्याएं होती हैं। और आपने बचपन से सुना होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं हैं, क्योंकि सिर्फ नारे से नहीं होता है। इतनी सारी फिल्में बनी हिंदू मुस्लिम एकता पर,
लेकिन उससे कभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ से होता है? जब हम संवाद करते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत करके उनको सुनते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं संवाद करके ये कम्युनिकेट करते हैं कि इंसान महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, इंसान का दर्द महत्वपूर्ण है। मुझे भी दर्द होगा, दूसरे मजहब वाले को दर्द होगा, दूसरे राजनीतिक पार्टी वाले को दर्द होगा, खुशी होगी सबको होगी, त्योहार होगा तो सभी का त्योहार होगा। और ये जब तक हम दुख दर्द को संवेदनाओं को बांटेंगे नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो है हमारे ना कोई नाटक, ना कोई सिनेमा, ना कोई विज्ञापन काम नहीं करेगा। हमारे समाज में संवाद की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस तरह के लोग हैं उनको आइसोलेट करने की भी जरूरत है। उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, कि वो तो चाहते हैं इसके माध्यम से वो केंद्र में आना चाहते हैं ना, मतलब वो समाज के सब डालों के केंद्र में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया में केंद्र में आना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो दूसरों गालियां देकर अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो अगर हम उनको जो है तवज्जो ही ना दें तो वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और जहां तक आपने स्क्रिप्ट की बात की, स्क्रिप्ट करते हुए बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बैलेंस की बजाय आप जो है उसमें इंसानियत, संवेदनाएं, भावनाएं, इमोशंस जो आप महसूस करते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और शायद वही सबसे बड़ी ताकत है। और ये समस्या पूरी दुनिया में है। ये जो धर्म की, राजनीति की समस्याएं हैं या कट्टरपन की समस्या पूरी दुनिया के अंदर है, सिर्फ भारत में नहीं है। और उसके साथ ही हमें कहीं ना कहीं जूझना है और लगातार तैयार रहना, क्यों? उसकी वजह से ही लोगों की हत्याएं होती हैं, बम विस्फोट होते हैं, उसकी वजह से ही अनावश्यक रूप से बच्चे और महिलाएं अनाथ होती हैं, रिफ्यूजी यहाँ से एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो ये पूरी जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे ऊपर है। और ये हमारी पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और कहीं ना कहीं संवाद करें। कम से कम अपने अंदर, अपने आसपास तो संवाद करें, तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत हम खुद से करें और अपनी लड़ाई अपने से लड़कर आसपास लड़ेंगे तो शायद वो इस समस्या से समाधान हो सकता है। समाधान नहीं तो कम से कम कुछ मतलब रास्ता तो निकल सकता है। जी, धन्यवाद अरविंद जी। वैसे समय का अभाव है और फिर भी अगर कोई अंतिम सवाल कोई पूछना चाहता है तो स्वागत है। सवाल पूछना चाहे स्वागत है। जी जी सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नमस्ते अरविंद सर। प्रमोद जी नमस्ते जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोविड के दौर में जिस तरह की समस्याएं आई, तो वर्क फ्रॉम होम का विकल्प जो है वो कलाकारों के लिए मौजूद नहीं था। और जिस तरह से आपने आर्थिक संरक्षण की भी बात करी, कई फेलोशिप्स की बात करी, हम ये जानते हैं कि वो फेलोशिप में दिया जाने वाला जो सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। आज के जो खर्चे और जो जिस तरह से है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। तो CCRT चाहे साहित्य कला परिषद जिस भी तरह की फेलोशिप देती है वो सीमित होती है। तो क्या आप भविष्य में देखते हैं कि ये, पहली बात तो ये आर्थिक संरक्षण बढ़ेगा, और क्या कोई एक ऐसा मॉडल आप देखते हैं या आपको लगता है ऐसा संभव है जिसमें हमें किसी तरह के संरक्षण की जरूरत ही ना हो, जहां पे फूहड़ फिल्में 200-300 करोड़ के क्लब को पार कर जाती हैं, तो हमारे थिएटर में भी थिएटर खुद ही उससे अपना एक मॉडल, एक रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने संरक्षण खुद कर सके? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। हम पिछले 30 सालों से इसी पर काम कर रहे हैं और अभी तक हमने कोई भी अनुदान सरकार से नहीं लिया है और उसकी अपनी दिक्कतें आती हैं। देखिए, जब आप दिक्कतों के बीच में, आप चुनौतियों के बीच में को स्वीकार करने के तैयार हैं तो दिक्कतें आएंगी, उसका समाधान भी आएगा। और यही वजह है कि हम लगातार अभी तक नियमित रूप से रंगमंच कर रहे हैं और बहुत ही सक्रिय रंगमंच कर रहे हैं। तो ये तो एक ढांचा है जो अस्मिता का ढांचा है, जहाँ पर अस्मिता थिएटर का, जहाँ हमने अनुदान न लेना तय किया और खुद ही अपना एक जो है जिसको करें सस्टेनेबल सिस्टम बनाने की कोशिश की। तो बेसिकली हमने अपने साधनों को, अपने संसाधनों का ही सदुपयोग किया। जैसे मैं रंगमंच पढ़ाता हूँ, मैं एक्टिंग क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, थिएटर वर्कशॉप करता हूँ, उससे जो भी आता है उससे मैं अपनी जो रिहर्सल की जगह है उसका बेसिक खर्चा निकालने की कोशिश करता हूँ। और बाकी पहले हम दर्शकों से निकाला करते थे, लेकिन अभी स्थितियाँ कोरोना के बाद में थोड़ी सी कठिन है वो, तो हमने अपने ही एक छोटा थिएटर बना के वहां नाटक करने शुरू कर दिए।
हम पिछले 2 महीनों से अपना लगातार अपने ही ऑडिटोरियम में छोटे स्पेस हमने डेवलप कर लिए हैं। तो हम वो ढांचा जो रंगमंच को महंगा बनाता है, उसमें सबसे महंगा बनाने का सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ऑडिटोरियम के किराए है। जो हॉलों किराए वो सबसे महंगी है, वो बनाता है। हमने उसको तोड़ दिया, हम हॉल में नहीं जा रहे और हमने तय किया कि अगले मतलब 6-7 महीने हम जाएंगे नहीं जब तक कोई हमें कहेगा नहीं कि आकर नाटक कर लो, हमें बुलाएगा, इनवाइट करेगा, हॉल देगा, तब हम नहीं जाएंगे, हमारे पास है नहीं साधन इतना। तो हमने क्या करें, क्या हम नाटक बंद कर? नहीं, हमने एक अलग किया, हमने अपना जो एक स्पेस है उसी में छोटा थिएटर डेवलप किया जहाँ 50-60 ऑडियंस बैठ सकती है। उतने इंतजाम नहीं, लाइट के उतनी नहीं है, लेकिन हमने जनरल लाइट में करने शुरू किए। तो एक रास्ता हमने वैकल्पिक रास्ता बनाया है और ये रास्ता जो देश की बहुत सारी संस्थाएं इस पर हमने पिछले पहले कोविड के पीरियड के बाद से हम काम कर रहे थे। हमने बहुत संस्थाओं को शेयर भी किया और बहुत लोग उस तरफ बढ़ भी रहे हैं कि अपनी जगह पर ना करें, क्योंकि रंगमंच महंगा नहीं होना चाहिए। और रंगमंच महंगा होने की वजह है कि हमारे पास कल्चर पॉलिसी नहीं है और प्रमोद हमारी कल्चर पॉलिसी की वजह से जिस सरकार ने 1 रुपया लीज पर जो जमीन दी थी ऑडिटोरियम वालों को, संस्थाओं को, वो उसके जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक नाटक के लिए, एक दिन के नाटक के लिए वसूल लेते हैं। उनके पे कोई कंट्रोल किसी का नहीं है और उसकी वजह से, क्योंकि पहले औद्योगिक घरानों को दी गई थी, कॉर्पोरेट तो अब आए हैं, पहले औद्योगिक घरानों का वर्चस्व था तो उनको दी गई, उन्होंने कब्जा कर लिया कल्चर पर। नतीजा ये है कि दिल्ली हो जाए बड़ी काफी जगह पर यही कब्जा है, तो उसको तोड़ना जरूरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर थिएटर सस्ता होना जरूरी है। ऑडिटोरियम का किराया, एक दिन का बिजली और बाकी खर्चा 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं हो सकता ऑडिटोरियम का, तो आप 10,000, 15,000, 20,000 किराया कर दीजिए, आप लाखों में क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ से जो आत्मनिर्भरता रंगमंच की बढ़ेगी और टिकट भी सस्ता होगा तो दर्शक भी और ज्यादा आएंगे। तो ये दरअसल पूरा एक जो ना, हमें पूरा बेसिक ढांचे में परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है और तभी जो है युवा काम कर पाएगा। और अपना एक जो ढांचा नहीं बनने पाने की वजह वो ये कि बैकअप जो जैसे पहले इस सवाल किया था, ये थिएटर का जो बैकअप वाला सिस्टम है ये भी बहुत महंगा है, तो उसको कम करने की जरूरत है। और इसके लिए हम लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सरकार के नुमाइंदों से बात करते हैं, उनको कहते हैं, लेकिन आमतौर से कल्चर हमारे किसी भी सरकार के लिए लास्ट हाशिए पर होता है। अब देखिए ना, देश का सबसे बड़ा संस्थान है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अब यहाँ पर लोग जान नहीं पाते कि, लेकिन चूंकि बड़े नाम है तो उसके अलावा हमें लगता है कि वहां से निकला, लेकिन निकलने के साथ देखिए पिछले 3 साल से वहां पर डायरेक्टर ही नहीं है, डायरेक्टर पोस्ट ही नहीं है। जो पिछले जो डायरेक्टर थे अडोक पर थे, ये डायरेक्टर भी अडोक पर है, तो और ये भी अडोक पर रिटायर हो जाएंगे, अगले डायरेक्टर की कोई उम्मीदें नहीं है। दिल्ली में साहित्य कला परिषद है, उसके पास जो है पिछले कई सालों से उसका सेक्रेटरी नहीं है, एक जो IAS ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर उसको चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां पर जब निर्णय लेने वाले कोई नहीं होंगे तो कैसे लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ ये जो सरकारी संस्थाएं का ढांचा है, उनके बहुत पैसा है, सब कुछ है, उनके पास जो है फेस्टिवल कराने के लिए बहुत पैसा है, मतलब उत्सव जिसको कहते हैं उत्सव धर्मिता, ये बहुत कुछ है, लेकिन वो पैसा अभिनेता तक पहुंचे वो नहीं पहुंच पाता। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था अमरीश जी कि थिएटर में बहुत पैसा है, आप भी जानते हैं, अनुदान के नाम पर, सरकारी ग्रांट के नाम बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो पैसा अभिनेता तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। तो अभिनेता तक बहुत कम पहुंच पाता है। क्यों? बीच में ही बहुत सारी चीजें होती हैं। और डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर आपसे कभी कहता है प्रमोद कुमार जी कि थिएटर में पैसा नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। बिल्कुल है, बहुत कुछ है, क्योंकि एक्टर तक नहीं आता है, एक्टर तक बहुत कम आता है। एक्टर के हिस्से का भी वो बहुत सारी चीजों में करा के एक्टर तक नहीं पहुंचता है। तो मेरा ये हमेशा कहना है कि एक्टर सबसे ज्यादा उपेक्षित है रंगमंच में, जबकि एक्टर रंगमंच में केंद्र में है जी। और सर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रही हूँ। अभी आर्थिक पक्ष की भी बात हो गई और सारी, लेकिन मैं ये बात करना चाह रही थी कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के ग्रुप्स थिएटर सोसाइटी या कुछ और होने चाहिए, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कुछ करे कि क्योंकि हम ये कहते हैं समाज को बेहतर बनाने का काम थिएटर से अच्छा और कोई नहीं संस्था कर सकती है। क्योंकि थिएटर में आप सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज को लेते हैं, स्ट्रीट प्ले में सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज को लेते हैं,
तो अगर इस तरह की कोई संस्थाएं बने या हम प्राइवेटली जैसे बनाते हैं, जैसे आपकी अस्मिता है, तो आपने कुछ और स्टूडेंट्स या कुछ अपने शागिर्द इस तरह के बनाए हैं जो इन चीजों को और आगे बढ़ाएं और कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके कुछ ज्यादा करें, स्टेट लेवल पे कुछ हो या सेंट्रल लेवल पे कुछ हो, तो क्या कुछ आपने ऐसा सोचा है या कुछ मुझे लगता है होना चाहिए? इस पे कुछ रोशनी डालें। जी 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 मैडम, बिल्कुल होना चाहिए। और इस तरह के हम लगातार सुझाव देते रहते हैं। हमारा आलोचना करना मकसद नहीं है, हमारा ये कि उसमें परिवर्तन हो, और वही परिवर्तन के लिए जो हमारे अपने अनुभव है वो सरकार को भी देते रहते हैं, दोस्तों को देते हैं, और बहुत जगह परिवर्तन भी हुआ है। और उसी की वजह से हम लगातार काम भी करें। युवा जो आ रहे हैं उनको सोच में परिवर्तन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लगातार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप युवा मेरे रास्ते पर चले, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मैंने तो चुनौतियों को स्वीकार किया, और उस समय की स्थिति ये थी कि मुझे उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और निसंदेह वो रास्ता मैं औरों को नहीं कहूंगा कि वो अपनाए, क्योंकि मुझे घर से मैं थोड़ा सा मुझे आज भी आर्थिक मैं रूप से मुझे घर की चिंता नहीं है। घर से मेरा संभालने के लिए मेरे पास एक संबल है, लेकिन हर एक के साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो है तमाम उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा है तो आपको करना चाहिए। आप बाकी संस्था कहीं पर है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका सदुपयोग करें, उसको रंगमंच के विकास में करें, और नए अभिनेताओं को प्रशिक्षित करने और उन तक पहुंचने के लिए करें। और लेकिन रंगमंच को निसंदेह एक जो कल्चर पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, कल्चर पॉलिसी आएगी तो शायद हम रंगमंच को और कलाओं को समाज में एक उनको जगह दे पाएंगे, और उसके हिसाब से हम बना पाएंगे। क्यों ना रहता है, ये कहता है अडोक लेवल पर चलता रहता है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो लागू होते होते वक्त लग जाता है। जी। जैसे स्कूलों में बात हुई थी कुछ साल पहले, एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने अपने स्कूलों में वो शुरू किया था, लेकिन वहां पर उनको बहुत मतलब उसकी उनके टीचर्स का ऐसा उनको टीचर की क्वालिफिकेशन ऐसी चाहिए कि मैं भी वहां अप्लाई नहीं कर सकता था, मैं भी उनके लायक नहीं था। तो वो बहुत सारे जो टेक्निकल चीजें हैं उसको करने के लिए संवाद की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में होगा, और निसंदेह पहले से बेहतर स्थितियां हैं और होंगी। चुनौतियां हैं, रहेंगी, समस्याएं हैं, रहेंगी, लेकिन उससे जूझ के क्रिएटिव काम करने वाले लोग जो है हमेशा आते रहेंगे। और नई पीढ़ी में तो और भी ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो तकनीकी रूप से ज्यादा मजबूत है नई पीढ़ी, तो उनके पास ज्यादा साधन है जो हमारी पीढ़ी के पास नहीं थे। कि ये पीढ़ी और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी, काम करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जी, तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। अरविंद जी, आपकी कुछ बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सारी वो नोट कर ली अपने लिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं उन पर ध्यान दूंगा, बाकी लोगों को भी देना चाहिए। आप तो मेरे लिए भी आदरणीय है। जी, आपकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये, आपने कहा कि संवाद सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हम सारे लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करते हैं, भले ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, अल्टीमेटली हम वी आर कम्युनिकेटिंग टू द पीपल। तो जो संवाद की उपलब्धता की बात है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात जो आपसे सीखने की है कि किसी को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग सफर करते हैं इस प्रॉब्लम से, तो सबको इस समस्या से निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बात जो आपने कही कि मोटिवेशन किसी से आता नहीं, खुद से ही आपको जनरेट करना पड़ता है। तो ये इसमें मैं भी पूरी तरह से यकीन रखता हूँ कि हर एक को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मैं भी जितना काम करता हूँ अपने मोटिवेशन से करता हूँ, बट हाँ, निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, भले ही हमें पता ना लगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। तो वो चीज हमारे साथ होनी चाहिए। दूसरा जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फाइट विद योर वीकनेसेस, हर एक को अपनी कमजोरियों से लड़ना है। तो अगर जीवन में आगे जाना है, और यूथ को खास तौर से एड्रेस करते हुए मैं कह रहा हूँ, तो आपको अपने ही कमजोरियों से लड़के अपने लिए आगे रास्ता बनाना है। और एक जो और महत्वपूर्ण बात जो आपने बताया उससे निकल के आई कि हर एक को डिग्निटी और लेबर में काम बस सोचना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि आपने खुद ही कमरे की सफाई की, खुद ही पोछा लगाया, मीनिंग देयर बाय कि हर एक को अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए।
और एक और जो बहुत अच्छी बात आपने की, एक्नॉलेजमेंट की। हमें जहां से भी जो भी मिल रहा है, जैसे आपने पेरेंट्स के एक्नॉलेजमेंट की बात की, हमको एक्नॉलेज करना चाहिए। इससे एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भी आगे जाएंगे और जिस समाज में हम काम कर रहे हैं वो समाज भी आगे जाएगा। तो इस तरह से हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अरविंद गौड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। आपका बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया पूरी फैकल्टी का और आप सबका जी शुक्रिया। नमस्कार। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.